A very good morning to all my dear students. Today I am here to present a lecture on the topic the 7 C's of effective communication. Dear students, as you all know that communication is the sharing of the ideas. When we are able to share our ideas to another person in an effective way, then that is called communication, because communication can be of two types: no communication and communication, communication with some misunderstandings. So here I would like to focus on the word communication first, just because with the help of the communication only we are able to present ourselves on different modes. Communication is a two-way process in which one is the sender and another one is the receiver. Sender sends the message, a receiver receives the message. Sender sends the message with the help of some medium. While sending the message, he encodes it, and when the receiver receives it, he decodes the message, took the feedback, and then he responds. While responding, the sender becomes the receiver and the receiver becomes the sender. So, this is called the process of the communication. Okay. Now, what is communication and what is effective communication? Communication means, just like I told you right now, means I am saying something to you and I am not bothered that whether you are understanding that or not. मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं उसको. मैंने सिर्फ अपनी बात को कह दिया, ये सोचते हुए कि आप उस बात को समझ गए होंगे. इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये होता है कि व्हेन आई एम देयर टू कम्युनिकेट विद यू या व्हेन आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, तो मेरा ध्यान इस बात पर अधिक है क्या आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ पाए, इनकलकेट किए, पूर्ण रूप से वो बात आपके मन मस्तिष्क में गई, आपने सही फीडबैक लिया, जो मैं कहना चाह रहा था वही आप समझे या नहीं समझ पाए. So this is called effective communication, which once makes understands you very clearly that actually what you want to convey to him. So there are different types of ways of communicating, but here my focus is on the 7 C's of effective communication. So in our communication part, how these 7 C's help you? These 7 C's are really very helpful for us or not? Let's see. These 7 C's help us how? Let's see what are those features of the 7 C's of communication. We will see in the this lecture. Now, the first is, let us focus. हम लोग फोकस करते हैं सबसे पहले कि हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. तो हम ये देखते हैं. सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों नेसेसरी है, क्यों मस्ट है, इसको जानना, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे. फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य तो हर चीज़ का होता है, बगैर ऑब्जेक्टिव के यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो आप उसका कभी भी कोई बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि यू हैव डन दैट वर्क विदाउट ऑब्जेक्टिव, या अगर बेनिफिट लेते भी हैं तो उसका पूर्ण बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं. नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ कम्युनिकेशन. क्या कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स हैं, इन पर फोकस किया जाएगा. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, एंड एट द एंड वी विल हैव कंक्लूजन. सो फर्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शन. लेट मी रीड फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस. There are 7 C's of effective communication which are applicable to both written as well as oral communication. देखिए, ये जो 7 C's of effective communication है, जो अभी मैंने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या है, और ये भी आप लोग सभी जानते हैं, मेरे कई पहले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने सुना होगा कि कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज द मेन मोड एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज हेल्प्स एज अ ब्रिज टू कम्युनिकेशन. लैंग्वेज is also called as a tool of communication. लैंग्वेज हमारा एक तरीके से टूल है ऑफ कम्युनिकेशन के लिए. सो is here we see that communication which are applicable to both written as well as oral.
सो ये जो कम्युनिकेशन है हमारा, ये रिटर्न भी होता है, हम लिखकर भी अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, हम बोलकर भी अपनी बात को अगले को समझाने का प्रयास करते हैं। सो कम्युनिकेशन इज और effective communication is both oral and written. Now, awareness of the 7 C's of communication makes you an effective communicator. अगर हम इन 7 C's को जान जाते हैं, इसकी जानकारी मुझे हो जाती है और जानकारी होने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि इनको कैसे एप्लीकेबल करना है रिटन फॉर्म में और कैसे एप्लीकेबल करना है ओरल फॉर्म में, तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक बात को कोट करना चाहूँगा कि अब्राहम लिंकन से यदि कहा गया था कि यदि हम आपको 8 घंटे देते हैं एक वृक्ष को काटने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आपका क्या प्रोसेस होगा, आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी। तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा कि उसमें से 4, 5 या 6 घंटे तो मैं लगा दूंगा अपनी कुल्हाड़ी की शार्पनेस में, मतलब मेरी कुल्हाड़ी शार्प है या नहीं है, और जो हमें 2 या 3 घंटे जो मिल रहे होंगे उन 2 या 3 घंटे में मैं इस पेड़ को काटने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, कोई दूसरा बंदा होता तो ये कहता कि भाई मैं तुरंत लग जाऊंगा पेड़ काटने में और पेड़ को काट के गिरा दूंगा, हमारे लिए 6 घंटे बहुत हैं, हमारे लिए 8 घंटे बहुत हैं, इस तरीके से वो बात कहता। लेकिन अब्राहम लिंकन यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम तो मैं शार्पनेस में दूंगा, जो भी आवर्स आप हमें अलॉट करेंगे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, उसमें से मैक्सिमम टाइम मैं अपनी कुल्हाड़ी की एक्स की शार्पनेस पर ध्यान दूंगा और फिर पेड़ को काटूंगा और पेड़ को काट कर ही रहूंगा और काट भी दूंगा। अब इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कैसे आया? क्योंकि वो स्किल में बिलीव करते हैं, टैलेंट में बिलीव करते हैं, इनोवेटिव वेज में बिलीव करते हैं, क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं। तो हमारे अंदर जब क्रिएटिविटी होती है, हमारे अंदर इनोवेशन होता है, हम अपनी स्किल्स को टाइम टू टाइम डेवलप करते रहते हैं, समय समय पर अपडेट होते रहते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, किसके सामने, किस प्रसंग में, किस प्रकार हमें बात करनी है, किस कंटेक्स्ट में, किस रेफरेंस में। ऑडियंस एनालिसिस अगर एक वर्ड यहाँ यूज़ करें तो बहुत फिट बैठ रहा है। जब आप ऑडियंस को एनालाइज कर लेते हैं और ऑडियंस को एनालाइज करने के बाद अपनी बात को आप फोकस करते हैं, फोकस इन द सेंस आप अपनी बात को ओरल में या रिटन में कहने जा रहे हैं, तो ऑडियंस फीडबैक अच्छा होता है, ऑडियंस आपकी बात को और बेटर तरीके से समझती है और आप ऑडियंस को और बेटर तरीके से समझा भी पाते हैं, क्योंकि आपने ऑडियंस का एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद ही आप अपनी बात को ऑडियंस के सामने कह रहे हैं। सो next we see in the next line it is written that their purpose is to help ensure that the person you are communicating with hears what you are trying to say. effective communication का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति से, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, hears what you are trying to say, वो इस बात को समझ पाए कि एक्चुअल में आप क्या कहना चाह रहे हैं। थर्ड वन, in order to ensure you get the right result when you communicate, you need to ensure that your communication is effective and clear. अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि in order to ensure you get the right result when you communicate, you need to ensure that your communication is effective and clear. ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आपने जो फ्रंट पर्सन से, 1%, 2% या 1000% या बहुत सारे लोगों से जो भी आपने अपनी बात को कहा है, कहने का प्रयास किया है, क्या उस बात को वो समझ पाया है क्लियरली? मीन्स जो आप कहना चाह रहे थे, क्या वो मैसेज उसके पास तक एज इट इज पहुंचा है या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इसी को हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की जगह इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो सभी करते हैं, तोता करता है, बिल्ली करती है, डॉग करता है, हाथी करता है, बफेलो करता है, पैरट कर, सभी करते हैं। तो क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या उसकी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे। बिल्ली बिल्ली की बात को समझ रही, तोता तोता की बात को समझ रहा है, कौवा कौवा की बात को समझ रहा है। द क्रो इज अंडरस्टैंडिंग क्रोज लैंग्वेज, सो मीन्स दे आर इजिली अंडर। तो द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज देयर इन बिटवीन क्रोज, इन बिटवीन द cats, in between the cows, in between the buffaloes, and just because why? क्योंकि वो उनकी भाषा को समझ रहे हैं और क्लियरली बात को समझ भी पाए हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि जो बात हम सामने वाले पर्सन से कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में वही बात समझ रहा है जो बात उसको हम समझाना चाहते हैं या हम कह रहे हैं। नेक्स्ट वी सी
बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स है? देखिए स्टूडेंट्स, लेट मी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। जब जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद से ही हम कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है हमारा। उस समय हमारे पास एक माध्यम नहीं होता है, मीन्स लैंग्वेज नहीं होती है, भाषा नहीं होती, तो हम चिल्लाकर अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं। जब हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हम किसी को याद कर रहे हैं या हम किसी को मैसेज दे रहे हैं कि आइए हमें फीड करिए, हमें साफ़ सुथरा करिए, हमें टॉयलेट लगी है, इस तरीके के मैसेज हम चिल्लाकर प्रेजेंट करते हैं। तो एक बच्चा क्या करता है, अपने चारों तरफ जो लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं वो जिस भाषा को बोलते हैं उसको सुनता है, और सुनते सुनते धीरे धीरे वो फिर उसको बोलने का प्रयास करता है। तो ही इज फर्स्ट ही इज लिसनर, मीन्स ही इज ए लिसनर फर्स्ट, देन ही बिकम्स द स्पीकर। तो देखिए नो डाउट यहाँ मैं एक बात को आपके सामने पहले रखूंगा कि इससे पहले मैं आगे जाऊं और बात करूं, तो मेरी बात को समझ लीजिए कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, इफेक्टिव स्पीकर, अ गुड पब्लिक स्पीकर, यू नीड टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। सबसे पहले दूसरों की बातों को सुनिए और समझिए और उनका अनुसरण करिए। सुनना केवल पर्याप्त नहीं है, सुनना केवल हियरिंग हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई किसी भी बात को आत्मसात करना आपको आना चाहिए कि क्या हम उस बात को समझ पाएं। जब आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे, उस बात को आत्मसात कर पाएंगे, तब आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। जल्दबाजी में हम बहुत सारी गलतियों को कर जाते हैं और अपनी बात को समझाने की जो भी हम प्रयास करते हैं, फिर भी हमारे प्रयास विफल होते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में थे। हमें अगले के कॉम्पिटेंस लेवल को भी चेक करना चाहिए और अपने कॉम्पिटेंस लेवल को भी चेक करना चाहिए। ओवरऑल दोनों के कॉम्पिटेंस लेवल को देखने के बाद उस कॉम्पिटेंस लेवल में पहुंचना चाहिए कि जिस प्रकार हम इस व्यक्ति से, इस पर्सन से अपनी बात को कहें, ये पर्सन, ये व्यक्ति उस बात को समझे जो हम एक्चुअल में कहना चाह रहे हैं। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए अगर कम्युनिकेशन हमारा अच्छा है, बातचीत हमारी अच्छी है, पब्लिक डीलिंग हमारी अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी हमारी अच्छी है, पब्लिक स्पीकिंग हमारी अच्छी है, तो कम्युनिकेशन को हम क्या करते हैं और अच्छे तरीके से मेक यूज कर सकते हैं अपने लिए, कैसे, और दूसरों के लिए भी। क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम बहुत जल्द ही किसी समस्या के समाधान की ओर बढ़ते हैं, ना कि उसको और कॉम्प्लिकेट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही संसार में हर चीज होती है। कम्युनिकेशन से आप किसी को शत्रु बना लेते हैं, कम्युनिकेशन से ही आप मित्र बना लेते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी समस्या का समाधान भी आपके पास होता है, और कम्युनिकेशन से ही आप चाहें तो समस्या को एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, कोई समाधान नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज हेल्पिंग अस इन ऑल द वे। नेक्स्ट, better decision making. With the help of the communication, I can take a good decisions because I know how to communicate in front of the audience, in front of the public, in front of any of the person, any of the place, in any of the mode. So I am able to take better decision. और जब आपके अंदर तुरंत डिसीजन लेने की भावना आ जाती है या आप डिसीजन को ले पाते हैं, तो कैसे ले पाते हैं? कम्युनिकेशन के माध्यम से, क्योंकि आपने अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, आपने अपने शब्द को उसको एनरिच किया है। क्योंकि कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग आपका तभी होगा जब आपके पास शब्दकोश होंगे, आप अपनी वोकैबुलरी को एनरिच करेंगे, टाइम टू टाइम आप रीडिंग पर फोकस करेंगे। रीडिंग की हेल्प से आपको नए नए शब्द आपके सामने प्रॉब्लम खड़े करेंगे अंडरस्टैंडिंग में, तब आप उनकी मीनिंग को देखोगे, सर्च करोगे कि किसका क्या मीनिंग है। तो जब आप थोड़ा सा पेन लेंगे, बहुत सारे शब्दकोश आपके पास, नए नए वर्ड्स आएंगे, आपकी वोकैबुलरी एनरिच होगी, आपका शब्दकोश बढ़ेगा, तो आप अपने कम्युनिकेशन को और स्ट्रांगली रख सकेंगे और कहीं ना कहीं बेटर डिसीजन ले सकेंगे। क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी आप फॉलो कर सकेंगे। स्टडी वर्क फ्लो, अब क्या है इसका मतलब? देखिए स्टडी वर्क फ्लो, यू विल बी एट वंस बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन, वेदर इट इज इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Strong business relation, with the help of the relation you will be able to build a bond in your business world, because देखिए बिजनेस वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के बहुत मायने होते हैं, वर्ड्स की बहुत
एक वैल्यू है, ऑथेंटिसिटी है, वही आपकी इमेज होता है। सपोज करिए आज मेरी दुकान पे कोई बंदा आया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक जनरल मर्चेंट हूँ, उसने कहा कि भाई साहब क्या आपकी दुकान में कोलगेट पेस्ट है? तो मैंने पहले देखा, मैंने कहा नहीं सॉरी नहीं है। तो इतना कहना केवल पर्याप्त नहीं है कि नहीं है मेरे पास। यदि आप कहेंगे उससे कि ठीक है सॉरी एट प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी व्यवस्था शाम को या कल सुबह तक आपके लिए कर दूंगा। अब वो बंदा कल शाम को या कल सुबह आया और आपसे पूछा भाई साहब क्या वो आप टूथपेस्ट लाए? आपने कहा अरे वो तो मैं भूल गया। तो देखिए इससे क्या होता है, जो एक बिजनेस रिलेशन आपका कस्टमर से बनना है वो टूटता है कि आप अपनी बात पर फिक्स नहीं है, आप जो कहते हैं वो आप नहीं करते हैं। तो देखिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, जो रिलेशंस बनने थे हमारे पब्लिक्स में, वो हमारे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन को मैंने यहाँ यूज़ नहीं, कम्युनिकेशन को मैंने मिस यूज़ किया है। तो कम्युनिकेशन को यूज़ करना हमें आना चाहिए, यूज़ इन द सेंस कि पब्लिक डीलिंग हमें आनी चाहिए कि पब्लिक को क्या चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग ऑब्लिक पब्लिक डीलिंग पर। अभी आगे देखते हैं बेटर प्रोफेशनल इमेज, क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपकी मार्केट में इमेज अच्छी होगी। अरे वो बंदा, उसकी बातचीत तो बहुत अच्छी है, वो एक्चुअल में जो कहता है बहुत अच्छी बात करता है, उसका शब्दों का चयन बहुत अच्छा है, और जिस कंटेक्स्ट में बात करता है वो उसमें क्लैरिटी होती है। और इससे क्या होता है कि एक बंदा दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और कहीं ना कहीं इससे आपका नेटवर्क बढ़ता है, और इसकी ही आवश्यकता हर किसी को समाज में होती है। तो देखिए ये हमारे मेन बेनिफिट्स हैं ऑफ कम्युनिकेशन के, कि क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटर डिसीजन मेकिंग, स्टडी वर्क फ्लो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस, बेटर प्रोफेशनल इमेज। इमेज को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, कई साल लग जाते हैं, हो सकता है पूरा जीवन बहुत लोगों का लग जाता है, और मिटने में सेकंड्स लगते हैं। तो हमें अपने कम्युनिकेशन को फिल्टर करके और अच्छे शब्दों का चयन करके ही बातचीत करनी चाहिए या कम्युनिकेट करना चाहिए, और उसी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जिस लैंग्वेज में अगले को बात समझ में आती। जैसे मैं हिंदी स्पीकर हूँ तो हिंदी स्पीकर से मुझे हिंदी में ही बात करनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकर हूँ तो इंग्लिश स्पीकर से मैं इंग्लिश में बात करूँगा, तभी उस बात को समझ पाएगा। अगर वो कोई डिफरेंट लैंग्वेज जानने वाला है और मुझे वो बात नहीं पता है, तो हम उसके सामने कुछ भी कहें वो हमारी बात को समझ ही नहीं पाएगा। तो हमें इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, here are the different types of 7 C's of communication. The main topic of today's is 7 C's of communication, or 7 C's of effective communication we can also say, and we can also say 7 C's of business communication. So first we have completeness, second one is conciseness, third one is consideration, fourth one is clarity, fifth one is concreteness, then sixth is courtesy, and seventh is correctness. इससे पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में जाऊं इनके डिटेल डिस्कशंस पे, थोड़ा सा एक प्रिसाइज फॉर्म में यहाँ छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कंप्लीटनेस मतलब क्या है? जब हम अपनी बात को आपसे कह रहे हैं, चाहे वो लिख कर हम कह रहे हो, चाहे बोल कर कह रहे हो, चाहे समाज में किसी से बात कर रहे हो, चाहे अपने घर में हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर हमारी बात कंप्लीट रहती है, हम आधी अधूरी बात नहीं कहते हैं। माँ ने कहा बेटा बाजार जाओगे? हाँ मम्मा चले जाएंगे। सुनो दूध ले आना। हाँ अरे मम्मा मैं समझ गया, बस ये लो पैसे। हाँ मैं समझ। अब आप ये नहीं सुन रहे कि माँ क्या कहना चाह रही, दूध आधा किलो का होगा कि 1 किलो का होगा, दूध 2 पैकेट लाने हैं कि 3 पैकेट लाने हैं कि 4 पैकेट लाने। मीन्स माँ की बात कंप्लीट नहीं हुई, वो आपने डिसीजन ले लिया, तो यहाँ पर गलत कम्युनिकेशन हुआ। और माँ तो अपनी बात को कंप्लीट करके आपको समझाना चाहती थी, लेकिन आपने कंप्लीटनेस नहीं लिया। तो देखिए इसी कम्युनिकेशन से हमारे वर्क अच्छे से डन भी हो जाते हैं और हमारे वर्क प्रभावित हो जाते हैं नेगेटिव में। तो नेक्स्ट अभी आगे स्लाइड में डिटेल में देखेंगे इसमें। कंसाइजनेस, कंसाइजनेस मतलब प्रोसाइज। बहुत ज़्यादा से हम लोग कहते हैं ये व्यक्ति बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बोलता है तो बोलता ही चला जाता है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी बात में ग्रेविटी लानी चाहिए, शब्दों का चयन टू द पॉइंट करना चाहिए, एक प्रिसाइज फॉर्म में, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अपनी बात को रखने का हमें आइडिया होना चाहिए कि ज़्यादा डिटेल में ना बात करते हुए कम शब्दों में हम कैसे अपनी बात को कह सकते हैं। कंसिडरेशन में स्पष्ट है कि कंसिडरेशन वो भाव होता है कि इससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। एक आभार भाव, यू एटीट्यूड पैटर्न को हमें फॉलो करना होता है यहाँ पर, कि अगर हमने कोई कार्य किया है, हमने बीटेक पास किया, 90% हमारे आए हैं, तो हमें लोग बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं
Okay, 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 it's okay, 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 okay. I'm not saying, even I'm not mentioning even a single word that is called thanks to you, or just because of your cooperation or your help or your blessings whatsoever, we are not mentioning out in that way. सो ये कंसिडरेशन का भाव यदि नहीं होता है तो चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती हैं और समाज में हमारा व्यवहार थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक नेगेटिव में जो है काउंट होता है. सो हमें बचना चाहिए. क्लैरिटी, जो बात आप कहें उसमें क्लैरिटी हो, क्लियर हो कि अगला आपकी बात को समझ पाया है इन फुल सेंस व्हाट यू वांट टू कन्वे टू हिम. देन वी हैव कंक्रीटनेस. कंक्रीटनेस मतलब यो जो भी बातचीत है आपकी उसमें कंक्रीट भाव होना चाहिए, मतलब सॉलिडिटी होनी चाहिए. जो बात आप कह रहे हैं उसको आप पूरा करने की भी क्षमता रखते हैं और पूर्ण करके ही आप उस बात को आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द कंक्रीटनेस. नो एब्स्ट्रैक्ट. कर्टसी, आदर भाव, सम्मान भाव, पोलाइट हम्बल वे में जब हम अपनी बात को रखते हैं तो हम उसे कर्टसी कहते हैं. करेक्टनेस मीन्स कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर फ्री होना चाहिए हमारा कम्युनिकेशन. क्योंकि यदि हम कहें, आपके सामने एक बात को कहते हैं कि गो कॉमा स्लो वर्क एट प्रोग्रेस, तो इसका क्या मतलब हुआ? गो कॉमा मतलब जाइए, स्लो वर्क एट प्रोग्रेस, कार्य जो है हमारा धीमी गति से है. अब हम कहते हैं गो स्लो वर्क एट प्रोग्रेस. गो स्लो कॉमा वर्क एट प्रोग्रेस. आई रिपीट, गो स्लो कामा वर्क एट प्रोग्रेस. जब हमने कहा गो स्लो कामा वर्क एट प्रोग्रेस तो मीनिंग बदल गई. क्या आंसर आया यहां पर? कि धीमे जाइए, कार्य वर्क एट प्रोग्रेस. और पहले में हमने क्या कहा था? गो कामा स्लो वर्क एट प्रोग्रेस. जो कार्य हमारा जो प्रगति में है वो किस प्रकार की प्रगति में? बहुत धीमी गति से चल रहा है. तो एक तरीके से देखा जाए प्रगति तो हो ही नहीं रही है. गो कामा स्लो वर्क एट प्रोग्रेस. तो देखिए यहां डिफरेंस आ रहे हैं हमारे सामने, डिफरेंसेस हैं. तो एक कॉमा की वजह से सेम सेंटेंस सेम वर्ड की मीनिंग बदल रही है. तो हमें ग्रामेटिकल एरर पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो हमारा जो सेंटेंस हो, जो हमारा वाक्य हो, उपवाक्य हो, शब्द हो, शब्दांश हो, वो ग्रामेटिकल एरर फ्री हो टोटली. नेक्स्ट, नाउ here we are going to study in detail with the definition of the completeness. See, for a effective communication, for a business word, you can say business communication, these 7 C's are very important. These 7 C's play a very vital role in your day-to-day life, even when you speak to any of the person. So please be very sincere while studying these 7 C's of communication. Listen, first one is completeness. The message must be complete. जो भी मैसेज आप दे रहे हैं वो पूर्ण होना चाहिए. It should convey all the facts required by the audience. ऑडियंस की तरफ से जो भी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो फैक्ट्स वो होने चाहिए. बिकॉज विदाउट फैक्ट्स जो आपकी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं काल्पनिक होती हैं. तो टॉक ऑफ रिगार्डिंग द फैक्ट्स ओनली. लाइक व्हेन यू सॉल्व एनी ऑफ द न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम आप मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं आप? यू बिगिन विद द क्वेश्चन, यू राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट एट लास्ट यू से LHS is equal to RHS, hence proved, means you have given the facts, you have proved. So completeness should be there. Second one is the sender of the message must take into consideration the receiver and should communicate all the facts and figures related to the message. जो भी सेंडर है ऑफ द मैसेज मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन, इस बात को उसे कंसिडर करना ही पड़ेगा. एंड शुड कम्युनिकेट ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू द मैसेज. किसी भी प्रकार की बातचीत को यदि आप किसी से भी कन्वे कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं, किसी को कन्वे कर रहे हैं, तो इस बात को आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कहना ही है कि आप जो भी बात कह रहे हैं विद फुल कंप्लीटनेस कह रहे हैं. Because if the completeness will be not there, dear student, just think for a while. Excuse me for a while. See, I am saying you should not miss out the facts and if the figures are required, if the facts is required, it's your whole soul responsibility to present that and convey the message in that form only. I think it is clear now. Next we have complete communication develops and enhances reputation of an organization.
जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे लोकल कंपनी हो, चाहे आपका घर का माहौल ही क्यों ना हो, चाहे आपका पड़ोस का माहौल क्यों ना हो, चाहे आपके शहर का माहौल हो, चाहे आपके स्टेट का हो, कंट्री का हो, या इंटरनेशनल लेवल की बात हो, हर लेवल में आप देखिए कि जब कंप्लीटनेस होती है, कोई बात अपनी पूरी तरीके से आपसे करता है बगैर किसी प्रकार की आधी अधूरी बात को कहे हुए, मीन्स अपनी बात को पूरी तरीके से आपसे यदि कहता है तो आप उसकी बात को वरीयता देते हैं, उसकी कंपनी को प्रायोरिटी देते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, उसकी संस्था को देते हैं। सो कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड एनहेंसेस रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपकी इमेज मार्केट में अच्छी होती है। Moreover, they are cost saving as no crucial information is missing and no additional cost is incurred in conveying extra message if the communication is complete. अब देखिए, इसमें कोई खर्चा तो होता नहीं अगर हम अपनी बात को पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं बाजार जाऊँगा, बाजार जाकर मुझे वहाँ आधा घंटा लग जाएगा, आधे घंटे के बाद मैं अपने कार्य को निपटाकर मैं घर आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपने अपनी माँ से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से एक कंप्लीट बात कही। दूसरा तरीका था कि आप अगर कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, आप बाजार जा रहे हैं, कोई डर के बस आपसे पूछ भी नहीं पाया आप कब आएंगे, आप क्यों जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस फैमिली पर्सन्स में डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वैसी इमेज बन जाती है, वैसे ही शंकाएं दिमाग में आने लगती हैं। और यदि आप पूरी बात को कहते हुए जा रहे हैं तो लोग रिलैक्स फील करते हैं और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे में काउंट भी करते हैं। सो अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज gives additional information, however whatever required. It leaves no question in the mind of the receiver. रिसीवर के मन मस्तिष्क में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, क्योंकि आप अपनी बात को संपूर्ण कर कर ही आगे बढ़ते हैं या समाप्त करते हैं। ऑल्सो इट परसुएट द ऑडियंस, कहीं ना कहीं ये तरीका जो है कन्विंस करता है ऑडियंस को और अच्छा भी लगता है। सो कंप्लीटनेस किसको अच्छी नहीं लगती? कंप्लीटनेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आधा अधूरा काम किसको अच्छा लगता है? आधी अधूरी बातचीत किसको अच्छी लगती है? किसी को नहीं अच्छी लगती। सो कंप्लीटनेस शुड बी देयर। Second one, we have conciseness. Now, conciseness means wordiness. That means communicating what you want to convey in least possible word without foregoing the other C's of communication. Conciseness is a necessity for effective communication. Means, देखिए ध्यान से, conciseness means wordiness, means communicating what you want to convey in least possible words. यदि आप अपनी बात को एक ऑब्जेक्टिव वे में कह सकते हैं तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स योर कम्युनिकेशन शुड बी कंसाइज, मीन्स प्रिसाइज, मीन्स टू द पॉइंट, मीन्स एक्यूरेट। जितने शब्द की आवश्यकता है उतने शब्दों में ही अपनी बात को कहने का प्रयास करें तो अगला आपकी बात को वैल्यू देता है। आवश्यकता 2 शब्दों की है और यदि 2 शब्दों की जगह आप 4 शब्द बोले तो वो गलत हो जाता है। ऐसे ही रिटन फॉर्म में हम देखते हैं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड से हम अपना कार्य चला सकते हैं, नहीं हम 2-3 वर्ड्स फिर से लिखते हैं। इन द कमिंग फ्यूचर कहने की क्या हो सकता है? आप सीधे फ्यूचर कह दीजिए। इट इज ड्यू टू कहने की आवश्यकता क्या है? आप सीधे बिकॉज कह दीजिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम देखेंगे बुक में, तो हमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो हमें बताते हैं कि इन बड़े वर्ड्स को या 5-6 जो वर्ड्स हैं इनको हम एक सिंगल वर्ड में भी रख सकते हैं और उतनी ही पूरी बात को कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कंसाइजनेस। नाउ हियर वी हैव सम फीचर्स ऑफ द कंसाइजनेस। तो लेट्स सी व्हाट आर दोस फीचर्स। पहला फीचर है इट इज बोथ टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग। भाई देखिए, कम शब्दों में आप अपनी अधिक बातचीत को कह पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो टाइम सेविंग हो गया, एज वेल एज कॉस्ट सेविंग ऑल्सो। जब समय आपका बचता है तो समय की कीमत तो होती है, तो उस तरीके से कॉस्ट सेविंग भी हो जाता है। इट अंडरलाइंस एंड हाईलाइट्स द मेन मैसेज एज इट्स अवॉइड चूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड। अननेसेसरी वर्ड को हमें अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके हमें अपनी बात को नहीं रखना चाहिए, अतिशयोक्ति को हमें पूर्ण रूप से अवॉइड करना चाहिए। थर्ड वन, कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। जो हमारा कंसाइज कम्युनिकेशन है, शॉर्ट एंड एसेंशियल, छोटी बातचीत और जितनी जरूरी है और कम शब्दों में हम ऑडियंस से इस बात को कहते हैं।
कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस, बहुत आसानी से समझ में आती है और कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के मैसेज बहुत अपीलिंग होते हैं और बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ऑडियंस इसको लाइक भी करते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना कि ये व्यक्ति फालतू बात नहीं करता है या बकवास नहीं करता है, ये जो भी कहता है जेन्युइन पॉइंट कहता है और टू द पॉइंट बात करता है, इसकी बात में दम है। इस तरीके से जब हम किस प्रकार की पर्सनालिटी को कहते हैं, तो जो कंसाइज फॉर्म में अपनी बात को रखते हैं ऐसे लोगों को सभी लाइक करते हैं। खासकर बिजनेस वर्ल्ड में तो ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है। जनरल वे में आप किसी से कुछ भी बात करें, जनरल चैट में कुछ भी करें, कि लॉन्ग बातचीत करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल वर्ल्ड, व्हेन वी आर इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, सो इट बिकम आवर होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर टाइम एंड द नेक्स्ट पर्सन टाइम्स ऑल्सो। अपना समय भी बचाएं और दूसरे के समय को भी हम सेव करें। ऐसा सभी लोग पसंद करते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में। लास्ट में कह रहे हैं कंसाइज मैसेज इज नॉन रेपिटेटिव इन नेचर। कोशिश करिए कि आप अपनी किसी द्वारा कही गई बात को एक या दो बार से, अगर जरूरी हो तो दोबारा कहें, नहीं तो एक बार में ही अपनी बात को समझाने का प्रयास करें, अपनी बात को रिपीट ना करें। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इंप्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। देखिए बहुत अच्छी बात यहां कही गई है, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स। कैसे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन। हमें ऑडियंस को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। हाउ? दैट मीन्स द ऑडियंस व्यूज, पॉइंट, बैकग्राउंड, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल। ऑडियंस का क्या व्यू पॉइंट है, क्या बैकग्राउंड है, क्या माइंडसेट है, क्या एजुकेशन लेवल है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको कंसिडर करना चाहिए। मेक एन अटेम्प्ट टू एनविसेज योर ऑडियंस। एक ऑडियंस की एनविसेज करिए, मतलब इमेज बनाइए। देयर रिक्वायरमेंट्स, इमोशन एज वेल एज प्रॉब्लम्स। उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या समस्याएं हैं। जब इन पर आप पहले से ही ध्यान केंद्रित करेंगे, तो जब आप अपना कम्युनिकेशन करते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, नो डाउट। क्योंकि मुझे पहले से पता है आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या नीड है। मैंने कोशिश किया, मैंने वर्क किया, मैंने एफर्ट किया और फिर मैं उस बात को कह रहा हूँ। Ensure that the self-respect of the audience is maintained and their emotions are not harmed। बहुत जरूरी चीज है और हमें इस पर बहुत ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमारा भी सम्मान बना रहे और अगले का भी सम्मान बना रहे। केवल अपना ही सम्मान या सेल्फ रेस्पेक्ट पर ध्यान मत दीजिए, ऑडियंस के सेल्फ रेस्पेक्ट का भी ध्यान रखिए और कोई भी ऐसी बात मत करिए जिससे वो इमोशनली हर्ट हो। Modify your words in a message to suit the audience needs while making your message complete। आपका मैसेज कंप्लीट हो जाए तो मॉडिफाई योर वर्ड्स इन मैसेज टू suit the audience needs while making your message complete। हमारा ध्यान इस पर अधिक होना चाहिए कि ऑडियंस की क्या आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ऑडियंस एनालिसिस है, जो कि हम यदि ऑडियंस एनालिसिस पहले से कर रखते हैं तब हम ऑडियंस के और क्लोज हो जाते हैं। ऑडियंस हमारी बात को सुनना पसंद करती है और कहीं ना कहीं हम उनके क्लोजर हो जाते हैं। तो ये है हमारा कंसिडरेशन। नाउ वी हैव सम फीचर्स ऑफ कंसिडरेट कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। लेट्स सी, एम्फसाइज ऑन यू अप्रोच। यू अप्रोच क्या है? कभी भी आप आई का ज़्यादा प्रयोग ना करें या वी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि आई से अहम भाव आता है। यू से क्या है, कहीं ना कहीं आप अगले को सम्मान दे रहे हैं, अगले का आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो यू अप्रोच शुड बी देयर। एम्पथाइज विद ऑडियंस एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस। कोशिश करिए एक इंटरेस्ट को डेवलप करने का प्रयास करिए ऑडियंस में। सो दिस विल स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। कहीं ना कहीं ऑडियंस से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। सो ऑप्टिमिस्ट टूवर्ड्स योर ऑडियंस। देखिए जब आप पॉजिटिव होंगे, आपके विचार होपफुल होंगे, तो वैसे ही बातचीत जब आप ऑडियंस से करेंगे तो ऑडियंस इस चीज़ को लाइक करती है। सो ट्राई टू मोटिवेट द ऑडियंस, बी ऑप्टिमिस्ट। एम्फसाइज ऑन व्हाट इज पॉसिबल रेदर देन व्हाट इज इम्पॉसिबल। अधिक से अधिक फोकस आपका इस पर होना चाहिए कि व्हाट इज पॉसिबल, ना कि व्हाट इज इम्पॉसिबल। ले स्ट्रेस ऑन पॉजिटिव वर्ड्स सच एज jovial, committed, thanks, warm, healthy, help, etc। तो ले स्ट्रेस ऑन पॉजिटिव वर्ड्स। ये हमारे कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं, सच एज jovial, committed, ये बहुत jovial पर्सनालिटी हैं, committed पर्सनालिटी हैं,
बहुत मतलब कि सबको मतलब कोई भी वर्क होता है तो धन्यवाद देते हैं, एक वार्म वेलकम करते हैं, अच्छे से हमें ग्रीट करते हैं, ठीक है, हेल्दी और हेल्प एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा कंसिडरेशन पार्ट है, जब ऑडियंस से हम बातचीत करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जब कंसिडरेशंस के इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट वी सी क्लैरिटी। Clarity implies emphasizing on a specific message or goal at a time rather than trying to achieve too much at once. ध्यान दीजिए बात पर, क्लैरिटी इंप्लाइज एम्फसाइजिंग, कहां पे एम्फसाइज कर रहा है, ऑन ए स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम, एक समय पर किसी स्पेसिफिक मैसेज या गोल पर उसका फोकस है, रेदर देन ट्राइंग टू अचीव टू मच एट वंस, एक साथ, जैसे कहते हैं ना, एक साथ कई चीजों को लेके मत चलिए, कोई एक ऐसा कार्य पकड़िए या इस तरीके से अपनी बात को रखिए कि उसमें क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो, अस्पष्ट ना हो। तो क्लैरिटी तभी होगी जब हम किसी बात पर फोकस करके बात करेंगे, ना कि हम चारों तरफ इन्वॉल्व होकर या इधर की भी बातचीत उधर की भी बातचीत, टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, माँ से बात भी कर रहे हैं, पिताजी से भी बात कर रहे हैं, बच्चे से भी बात कर रहे हैं, वाइफ से भी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और कोई ना कोई फेल करता है, किसी न किसी का ईगो हर्ट होता है, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। ऐसे ही आप इस चीज़ को प्रोफेशनल वर्ड में ले लीजिए। आप यदि कॉलेज में हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो एट अ टाइम एक बच्चे के डाउट को आप क्लियर करते हैं। अगर सभी बच्चे एक साथ बोलने लगे या हर बच्चे को आप एक साथ कुछ ना कुछ जवाब देने लगे इन रिस्पॉन्स टू डेथ, तो देखिए कहीं ना कहीं एक हौच पौच माहौल हो जाता है। तो क्लैरिटी शुड बी देयर। तो क्लैरिटी कैसे आती है, जब आप emphasize करते हैं on a specific message or goal at a time. So clarity in communication has the following features. इसके कुछ features हैं. It makes understanding easier. हमारी understanding लेवल जो है बहुत आसान हो जाती है क्योंकि आप में क्लैरिटी है, आप फोकस कर रहे हैं या एम्फोसाइज कर रहे हैं ऑन ए स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट ए टाइम रेदर देन ट्राइंग टू अचीव टू मच एट वंस। सेकेंड पॉइंट, कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज एनहेंसेस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। जब हमारी क्लैरिटी कंप्लीट होती है, हमारे आइडियाज अपने में कंप्लीट होते हैं, तो वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और आइडियाज होते हैं एनहेंस करते हैं द मीनिंग ऑफ द मैसेज। जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, बात कन्वे करना चाह रहे हैं, उनको एनहेंस करते हैं क्योंकि उसमें कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस देखिए मतलब कंप्लीट क्लैरिटी, जो क्लैरिटी है वो कंप्लीट हो, आधी अधूरी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड। भाई अगर हमें मैसेज क्लियर देना है आपको, तो हम एम्बिगुअस नहीं होंगे, एम्बिग्विटी से बचेंगे, डबल मीनिंग ट्रिपल मीनिंग वर्ड को हम इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। वहां पर हम उन्हीं वर्ड्स का प्रयोग करें, हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का भी प्रयोग नहीं करेंगे, टेक्निकल जार्गन्स भी हम वहाँ पर यूज़ कम ही होंगे। हम वहाँ पर यूज़ ऑफ वर्ड्स वही होंगे जिस पर्सन से, जिस माहौल में, जिस परिप्रेक्ष्य में, जहाँ कहीं भी आप जिससे बात कर रहे हैं, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि वो किस बात को समझ सकता है। उसके अकॉर्डिंग जब आप अपनी बात को रखते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड। अब इससे आपका क्या होता है, एक अच्छा वर्ड बनने से मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। कैसे? क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स। नेक्स्ट we see concrete communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general. हम यहाँ पर जनरल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की या ओवर टॉक करने का प्रयास नहीं करते हैं। कंक्रीटनेस स्ट्रेंथन्स द कॉन्फिडेंस। अगर आप कंक्रीट हैं, आपकी बात क्लियर है, क्लैरिटी है, तो देखिए जो ये कंक्रीटनेस वहीं से आती है, कंप्लीटनेस और क्लैरिटी से ही। जब ये कंक्रीटनेस आप में आ जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यहाँ पर जब कॉन्फिडेंस की बात हो रही, तो मैं आपसे यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास नॉलेज है। जब आपके पास नॉलेज है तब आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। केवल नॉलेज से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना नहीं आता, आपको कम्युनिकेशन करना नहीं आता, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं आता है यदि, तो नॉलेज भी बेकार है। केवल कॉन्फिडेंस से, अगर नॉलेज नहीं है, केवल कॉन्फिडेंट होकर भी हम अपनी बात को अगले को नहीं समझा सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों का होना बहुत ही अनिवार्य है यदि हम चाहते हैं कि हमारी बात को अगला समझे जो हम कहना चाह रहे हैं।
सो नॉलेज आप अपग्रेड करते रहिए, मतलब अपनी स्किल्स को मजबूत करते रहिए, और फिर जब स्किल्स को आप मजबूत करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, आपके बिजनेस मीटिंग्स में आपके आइडियाज़ को लाइक किया जाएगा, आप टू द पॉइंट हैं, आप जो बात करते हैं प्रिसाइज भी करते हैं, क्लैरिटी होती है, सब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है, तो आपकी बातचीत में कंप्लीटनेस होता है। तो इन सब चीज़ों को हर कोई रेट करता है, कोई भी किसी का समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहता है, ना ही अगला ऐसी एक्सपेक्टेशन आपसे करता है, ना ही आप स्वयं ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी अन्य से करते होंगे। सो कंक्रीट मैसेज हैज़ द फॉलोइंग फीचर, इट इज़ सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी बात आप कहेंगे फैक्ट्स फिगर के साथ बातचीत को रखिए। इट मेक यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेपुटेशन। बहुत अच्छी बात है, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, आई रिपीट, इट मेक यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर। कंक्रीटनेस में क्या होता है, ये उन वर्ड्स का प्रयोग करता है दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेपुटेशन। हम उस प्रकार की बातचीत को कहने का प्रयास करते हैं जिससे हमारी इमेज अच्छी हो, जिससे हमारा रेपुटेशन अच्छा हो, जिससे हमारा रेपो अच्छा हो। ध्यान दीजिएगा बात पर। तो कंक्रीटनेस में वो उन चीज़ों को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है कि हमारी बातचीत में कंप्लीटनेस हो, क्लैरिटी हो। तो इससे हमारा जो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी है, एक अच्छी पर्सनालिटी बनती है, और हम जनरल बात को बहुत कम करते हैं, एक फॉर्मल वे में हमारी बातचीत अधिक होती है यहाँ पर। सो कंक्रीट मैसेज आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड। जो कंप्लीट मैसेज होंगे या कंक्रीट मैसेज होंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, आपका कंप्लीट मैसेज या कंक्रीट मैसेज आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड। जब हमने अपनी बात को कंप्लीटली आपसे कह दिया है, क्लैरिटी के साथ, कंसाइजनेस के साथ, कंक्रीटनेस के साथ, तो मिस इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता। अगर हम कंक्रीट हैं तब भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि हमें इन चीज़ को अपने कम्युनिकेशन में, खासकर अपने प्रोफेशनल वर्ड में, बिजनेस वर्ड में, तो जरूर से जरूर अप्लाई करना है। देन वी हैव कर्टसी। अब कर्टसी कौन नहीं जानता है, हर कोई एक्सपेक्ट करता है कर्टसी भाव के लिए। So courtesy in message implies the message should show the sender's expression as well as should respect the receiver. ध्यान दीजिए, the sender of the message should be sincerely polite, judicious, reflective and enthusiastic. देखिए यहाँ केवल सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कर्टसीफुल है, अपने वर्ड्स में हम्बल है और पोलाइट है, आपके सम्मान को ध्यान में रखते हुए आपकी बात कह रहा, आपसे बात कह रहा है। ये रिसीवर की भी जिम्मेदारी बनती है कि ठीक उसी प्रकार वो भी रिस्पॉन्स करे उसको। तो ये होता है कर्टसी। इस तरीके से हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, हमारे बिजनेस रिलेशन और स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, सो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव एंड एंथुजियास्टिक। भाई जितने मैसेज एंथुजियास्टिक होते हैं, एंथुजियास्टिक होना कौन नहीं लाइक करता है, सभी फुल ऑफ एंथुजियाज्म होना चाहते हैं, सब चाहते हैं उसमें एक झील हो, एक जुनून हो, एक ऑब्सेशन हो। सो कर्टसी का मतलब, एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको ऐड ऑन करूँगा कि कर्टसी का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप बैक करें, आप नील डाउन हो जाएं, आप विद द जॉइंट हैंड्स बात को रखें। कर्टसी का मतलब है कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, जैसे हम लोग कहते हैं, आप बहुत सम्मानपूर्वक अपनी बात को अगले से कह रहे हैं और अगला भी सम्मानपूर्वक आपकी बात को सुनकर रेस्पॉन्स दे रहा है। तो इस तरह से ये हमारा कम्युनिकेशन होता है कर्टसी। Now, courtesy message has the following features. Courtesy implies taking into consideration both viewpoints as well as the feeling of the receiver of the message. केवल हमारा ध्यान इस पर ही केंद्रित नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, हमारा ध्यान इस पर भी केंद्रित है, हमारा ध्यान उधर भी स्पष्ट रूप से जा रहा है कि आपके मनोभाव क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फीलिंग्स का भी बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जब कभी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत कुछ हम मेकआउट करते हैं, स्कैन करते हैं। अब देखिए, एक अगर जानवर है, सपोज करिए डॉग है, ठीक है, अगर उसको हम डांटते हैं, मारते हैं, तो वो हमको देख के भागता ही है या हमको भौंकता है, हमको बार्क करता है। यदि हम उसको प्यार करते हैं, सहलाते हैं, रोटी देते हैं, दूध देते हैं, तो वो भी इस बात को समझता है कि यहाँ हमको प्यार मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग तो इंसान हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर्टसी भाव को लाइक करेंगे। तो कर्टसी भाव को लाइक करने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल लाइक करें और अगले को अच्छी बात ना कहें जिसको वो भी लाइक करें, तो ऐसा नहीं होता है। हम दोनों, सेंडर और रिसीवर दोनों का ही ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बातचीत में एक कर्टसी होनी चाहिए, सम्मान भाव होना चाहिए।
So it make courteous message is positive and focus at the audience. देखिए ये पॉजिटिव होते हैं और इनका फोकस ऑडियंस पे अधिक होता है. It makes use of terms showing respect for the receiver of the message. It is not at all biased, और ये biased बिल्कुल नहीं होता हमारा courtesy भाव. It is bias free. Then we have correctness. Correctness in communication implies that there are no grammatical errors in communication. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ही था आपको, ठीक है. जैसे कि सपोज करिए मैं फिर से एक हिंदी में एग्जाम्पल देता हूँ. पहले मैंने गो स्लो करके एग्जाम्पल दिया था कि गो के बाद कॉमा लगा दीजिए, स्लो वर्क एट प्रोग्रेस. फिर गो स्लो के बाद कॉमा लगा दीजिए, वर्क एट प्रोग्रेस. तो जब हमने कहा गो स्लो वर्क एट प्रोग्रेस, मतलब कार्य जो प्रोग्रेस में है वो किस में है, स्लो गति में है, तो एक तरीके से प्रोग्रेस है ही नहीं है. दूसरे में गो स्लो के बाद कामा लगा रहे हैं, वर्क एट प्रोग्रेस, मतलब वर्क जो है प्रगति में है और धीमे चलिए, ठीक है. पहले में जाइए, स्लो वर्क एट प्रोग्रेस. दूसरे में क्या है, आप धीमे जाइए, वर्क एट प्रोग्रेस, ठीक है. वैसे यहाँ कहें जैसे कहें मारो कामा मत जाने दो, ठीक है. हम कहें मारो मत कामा जाने दो, तो देखिए मीनिंग तुरंत बदल रही है यहाँ पर, ठीक है. तो concreteness in communication implies that there are no grammatical errors in communication. तो एरर फ्री हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रीचेक करना है, आपको प्रूफ रीडिंग करनी है, आपको क्रॉस रीडिंग करनी है. कभी कभी हम स्वयं क्रॉस रीडिंग करते हैं या अपने मित्रों से करवाते हैं. तो करेक्ट कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग फीचर. जैसे कि बातचीत में हम कहते हैं अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो भाई साहब आप मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है. तो ऐसा भाव भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ही आता है कि देखिए इसने पहले से ही हमसे कह रखा है कि यदि मैं कुछ मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए या मैं आपके सम्मान में कुछ गलत बोल जाऊं तो भाई साहब मुझे क्षमा करिएगा. हम ऐसे कहते हैं भाई साहब मुझे माफ कर दीजिएगा. तो ये क्या है, एरर्स यदि हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो यदि अगले को लग रहा है यहाँ एरर है तो पॉइंट आउट करके हमें बता दे हमारी बातचीत में ये कमियां हैं. सो लेट्स सी, करेक्ट कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग फीचर. द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम. ध्यान दीजिए पहला पॉइंट क्या है, द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम. जो भी आपका मैसेज है बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज हो, करेक्ट हो और वेल टाइम्ड हो, समय से हो. इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल. अगर कम्युनिकेशन आपको फीलिंग स्वयं आ जाती है कि आपका जो कम्युनिकेशन हुआ बहुत अच्छा हुआ है, आप स्वयं से बूस्ट अप हो जाते हैं और अगला तो समझ ही जाता है कि कम्युनिकेशन कैसा है आपका. करेक्ट मैसेज हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस और रीडर्स. ध्यान दीजिएगा क्योंकि यदि कामा, कोलन, सेमी कोलन, हाइफन, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, बहुत सारे असर्टिव, बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं कि लैंग्वेज में, रिटन में या वर्बल में जब हम यूज़ करते हैं और उनको हम यूज़ ना करें, गलत जगह कर दें, कहाँ कोलन होना चाहिए, कहाँ सेमी कोलन होना चाहिए, कहाँ हाइफन होना चाहिए, अगर इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ कोलन लगा दें, यहाँ हाइफन लगा दें, ऐसा नहीं होता है. हमें ग्रामर के पॉइंट्स को को भी एक तरीके से कहीं ना कहीं डीपली स्टडी करनी चाहिए कि आखिर हाइफन हम कब लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन कब होता है, इम्पेरेटिव कब होता है, असर्टिव कब होता है. बहुत सी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देकर कहीं ना कहीं अगर अपनी बात को लिखते समय या बोलते समय थोड़ा सा ध्यान दें तो और अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा होता है. सो it checks for the precision and accurateness of facts and figure used in the message. जब grammatical error free है तो उसमें हम इस चीज़ पर भी ध्यान देते हैं कि it checks for the precision and accurateness कि क्या आपका मैसेज precise है, accurate है, and whether it is full of facts and figures or not. It makes use of appropriate and correct language in the message. तो ग्रामर पार्ट पर जब हमारा फोकस रहता है तो हम बहुत सी चीज़ों को इस पर मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार जब प्रूफ रीडिंग करते हैं तो ग्रामेटिकल एरर्स पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और यदि ग्रामेटिकल एरर हैं तो पहले मुझे उसको एरर फ्री करना चाहिए, तब कहीं रिटन फॉर्म में उस बात को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए. यदि ओरली भी हम बातचीत किसी से कर रहे हैं तब भी हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें कहाँ पॉज लेना है, कहाँ हमारी वॉल्यूम राइज होगी, कहाँ हमारी वॉल्यूम डाउन होगी, कहाँ हमारी वॉल्यूम समकक्ष होगी, किस बात पर, किस वर्ड पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस वर्ड पर हमें कम फोकस करना है. तो बोलते समय भी हमें इन बातों पर बहुत कुछ ध्यान देना होता है. सो ये हमारे पॉइंट्स हैं कंक्रीटनेस के. नाउ इन कंक्लूजन में यदि हम देखें कि अभी जो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने ये देखे यहाँ पर हमारे सामने हैं, जो एक बार फिर हम आपके सामने ला रहे हैं कि कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कर्टसी
कंक्रीटनेस। तो देखिए ये जो 7 हमारे हैं 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इनको हम कह सकते हैं 7 सीज ऑफ communication, 7 C's of business communication, 7 C's of professional business communication, in any of the way we can say, but overall while communicating, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, अगर इन पॉइंट्स पर, इन 7 पॉइंट्स पर हम ध्यान देकर उस बात को लिखते हैं या कहते हैं तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड, और हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है, हमारी एक अच्छी इमेज बनती है, और एक अच्छी इमेज का, अच्छी पर्सनालिटी का आपको लाभ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी कमियों को तो दूर कर ही लेते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे अगले लोग भी इंस्पायर होते हैं, वो भी अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ सभी को अच्छी लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप सही से अपनी बात को कहेंगे, रखेंगे, तो अगला भी कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि हम भी उसी तरीके से बात करें, हम भी उस पैटर्न को लर्न करें, उस प्रोसेस को लर्न करें, उस स्ट्रेटजी को जाने, उस प्रोसेस को जाने, आपकी उस स्किल को जाने कि आपका नाम है, आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं, आपकी बात को लोग सुनते हैं, आपकी बात को कंसिडर करते हैं, आप किसी भी दुकान में जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट ना होते हुए भी आप कैसी बातचीत करते हैं। एक भैया गए, सामान ले आए, वापस करने गए, नहीं पसंद आया तो वापस नहीं किया, आप गए वापस करने, आपने किस तरह बातचीत कर दी कि उसने वापस कर लिया। क्यों? क्योंकि यू अप्रोच है। क्यों? क्योंकि सम्मान देकर हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अहम के साथ बात नहीं कर रहे हैं कि ये सामान मैं आपकी दुकान से ले गया था, इस सामान को आप वापस कर लीजिए, इस सामान को मैं ले गया था, मुझसे गलती हो गई। गलती इस प्रकार से हो गई कि उस समय मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप इसको वापस कर लें तो अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं वो भी कहता है चलिए ठीक है, हम वापस कर लेते हैं, आगे से प्लीज़ ध्यान देकर ही सामान ले जाया करिए, क्योंकि एक बार यदि हम वापस करेंगे तो सभी लोग वापस सामान करने लगेंगे, तो हमें फिर दिक्कत होगी बिजनेस करने में। तो देखिए, हमारे बातचीत में जब परिवर्तन आते हैं, एक कहीं ना कहीं एक कटसी भाव आता है, एक यू अप्रोच डेवलप होता है, एक कंसिडरेशन होता है, कंक्रीटनेस होती है, और क्लैरिटी होती है, और फाइनली करेक्टनेस जब होती है तो बातचीत तो इफेक्टिव हमारी हो ही जाती है। सो इन coming directly to the conclusion, we see the way we communicate is a huge factor in how successful we are in life. हम अपनी लाइफ में कामयाब या नाकामयाब अपनी बातचीत से ही होते हैं। समाज में किसके साथ उठना बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से बोलना है, किस सर्कमस्टांसेस में कैसे क्या कहना है, किस सिचुएशन में क्या बोलना है, ये हमें पता होना चाहिए। If we communicate effectively, it gives us more credibility in our jobs as well as personal life. पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, सामाजिक लाइफ में भी इसका बहुत असर पड़ता है, और बिजनेस वर्ल्ड में तो पड़ता ही पड़ता है। हो सकता है टेंडर आपको ही मिल जाए आपकी इस बातचीत से, हो सकता है टेंडर आपको ना मिले, किसी और को मिल जाए, अगले की बातचीत इफेक्टिव थी। सो using the 7 C's of communication, that is when you are clear, concise, concrete, correct, consider the speaker complete and courteous. With your message, you will become an effective communicator and find more success in your interaction with people. So, with the help of these 7 C's of communication, you can become a good communicator, an effective communicator, and you will find yourself more success in all sorts of interaction with the people. So, mostly it is up to you all how to make use of these 7 C's of communication. I have tried my best to make you explain. Hope you all have understood well. So, here मैं अपनी बात को रोकता हूँ और आप लोगों को और बेटर तरीके से समझाने का प्रयास, और नए नए टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। फिर हम यहाँ पर अपनी बातचीत को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक